हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंट्स। अभी एडमिशन सीजन चल रहा है और हमने सोचा उसी से रिलेटेड आज और बात करें। ऑफ कोर्स मैंने इसके पहले वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बोर्ड्स के बारे में बात किया है, चॉइस ऑफ स्कूल बोर्ड। ऑल्सो आई हैव स्पोकन अबाउट की एज क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। एंड ऑल्सो आई हैव requested the parents to go to the nearest school, inquire about your nearby schools. उसके लिए I'm so thankful to you all. Thank you so much for visiting to these centers and inquiring about it. क्योंकि मुझे उसके बाद पेरेंट्स के कई क्वेश्चंस आए, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो आ रहा है सबके दिमाग में, कौन सी क्लास। व्हाट आई हर्ड वाज कि अभी तक आपने बोर्ड्स का बनाया, हमको वो क्लियर हो गया कि हमको कौन से बोर्ड में डालना है। वी आर क्लियर विथ इट, लेकिन प्रॉब्लम है कौन से क्लास में डालना है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। सो फॉर दिस टुडे वी हैव कॉल्ड एन एक्सपर्ट who can discuss and who can talk about it, and वो कुछ पैरामीटर्स हमको बता देंगे जिसको हम ध्यान में रखते हुए we can take the final decision. Like I have been saying in all these videos that after all it's all about our little one's future. So let's meet Dr. Gurubaksh Singh Chhabra. He is the CEO and the founder of Educare India Advisory Private Limited, which is based in Chhattisgarh state, the capital city, that's Raipur. And he is the chairman of Delhi World Public School in Charoda district, which falls under Chhattisgarh state. So let's hear from him. क्या पैरामीटर्स हैं एंड कौन सी, लेट्स हियर फ्रॉम हिम. So hello everyone. So here is Dr. Gurubaksh Singh. Namaste and welcome to Parency, sir. Namaste, Priyanka. How are you? I am doing great, sir. How about you? All good here, all good. बताइए. Sir, a little brief intro. Who is Dr. Gurubaksh Singh? Earlier, long back, used to be a software professional. Later on, became a school education consultant, wherein I have been an instrument for setting up around 164 plus schools all across the country, including couple of schools in Gulf countries as well. Like we've done two schools in Abu Dhabi, one in Qatar, one in Nepal. Mm-hmm. And while working with these schools, we have done the affiliation or the recognition work from different boards like CBSE, ICSE, IGCSE, and IB board as well. It was a long journey, but just to summarize it, it basically purely into school education system, starting from 2006, wherein we have seen the change in education system in our country, how CC was implemented in 2009, and nobody was aware of what actually is to be done. People were all in confusion, and it took almost 1 or 2 years to settle down, and then gradually again, coming back to the same percentage-based system. And see, the changes are happening every year, but yes, we need to keep ourselves updated also with the changes and the policies of government as well. But yes, of course, overall, a big journey wherein we have done a lot of standalone schools. Right now, we are the only onboard consultant with JSW Group of Schools all across the country and Adani Group of Schools as well. Mm-hmm. So that's a short introduction of mine, Priyanka. That's short but very heavy. Now, as you said, education system. आज उसी से related हमको बात करनी है. We want to understand there are different policies, education policies when it comes for classes की age criteria एक set होता है and state wise everyone is following it, but now each state वो भी अपने हिसाब से, schools भी अपने हिसाब से age criteria set किए हैं and they are enrolling it. There are different situations I have it or the cases I have it where अलग अलग school में अलग अलग age criteria accept हो रहा है. एक सिचुएशन ऐसा है सर कि द चाइल्ड कई एक कुछ फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ महाराष्ट्र स्टेट का, दे कुछ स्टेट फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट से लेके दिसंबर तक दे फॉल इन वन स्कूल वन क्लास. कुछ फॉलो कर रहे हैं
फ्रॉम 1 जून से लेके 31 मई। कुछ फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम 16 अक्टूबर से लेके। सो दिस वेरिएशंस आर लॉट एंड विच इज कंफ्यूजिंग अ लॉट इन पेरेंट्स माइंड कि ये इतना कंफ्यूजिंग है कि हर पेरेंट के लिए है। सो इफ यू कैन हेल्प अस आउट विद दैट। I'll pick up the line in between all the questions which you have said. You said every state, or rather every school, is following their own set of guidelines. Now, I'll tell you how it started all. I mean, way back in 2009, it started with the implementation of an act called Right to Education Act, which was introduced by the current government in 2009, saying that each and every child of our country has the right to get the education with cost, with fee or without fee, between the age group of 6 to 14, right? This is how it started. Now, when this act was introduced, it was mentioned very categorically that when we say age group of 6 to 14, that means starting from class 1 to 8. That's a minimum basic education which government want that कि हर बच्चे के पास कम से कम इतनी स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। तो उस समय ही इन्होंने एक पहला माइलस्टोन या पहला एक मार्क दे दिया था जिसमें ये बताया गया है कि क्लास 1 में जो बच्चा आएगा उसकी एज होनी चाहिए 6 इयर्स। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, हम अभी बात कर रहे हैं 2009 की, 2009 तक फॉर्मल एजुकेशन यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 1। Pre-primary education was not considered as mandatory education as far as government policies are concerned. फिर जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को कहा कि इसको आप अपने अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करिए। While passing this instruction to each and every state, they have given one more option, like as per the requirement of your state, you can do bit of customization into this act, but the base policy should not change. Like, the right to education between the age group of 6 to 14 should not change. But how to implement it, it is your call, and they have given a deadline of 3 years. Like within 3 years, each and every state was supposed to implement it, and almost all the states have done it also. कुछ स्टेट्स ने 1 साल बाद कर लिया, कुछ ने 2 साल बाद किया, कुछ थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे बट उन्होंने भी किया। अल्टीमेटली नाउ सभी स्टेट्स में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर सारे बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे, इनको फ्री एजुकेशन मिलती है। इनकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फी पे करती है। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% रिजर्वेशन सीट्स का प्रोविजन लिया गया है, जिसमें कि हर स्कूल को अपने यहाँ एंट्री लेवल क्लास में 25% सीट रिजर्व करनी है। अब ये जो वर्ड मैंने यूज किया एंट्री लेवल क्लास, ये एक वेरिएबल फैक्टर था अलग अलग स्टेट में। जैसे मैंने बताया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इन चीजों को हर स्टेट अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकता है, कुछ स्टेट ने कहा मेरे यहाँ एंट्री लेवल क्लास होगी क्लास 1, कुछ स्टेट्स ने कहा मेरे यहाँ एंट्री लेवल क्लास होगी नर्सरी, कुछ स्टेट्स ने कहा कि नहीं, स्कूल अगर नर्सरी से शुरू हो रहा है तो नर्सरी एंट्री लेवल क्लास है, अगर स्कूल क्लास 1 से शुरू हो रहा है तो क्लास 1 एंट्री लेवल क्लास। बट अगेन मोर और लेस सबने अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट किया एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो गया। फिर थोड़े समय के बाद दिल्ली में खासकर ये एक डिबेट हुआ, लोगों ने कई PILs लगी कि भाई जो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं वो एडमिशन्स की इतनी मारामारी है, क्योंकि लोगों को 6 महीना पहले, 8 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था बच्चों का। मतलब द चाइल्ड who is at the age of 2 year or 1.5 year, parents were standing in the queue to get the form and register their ward, not for the next academic session, next to next academic session also. So that was a situation where Supreme Court took a notice of it, and then Supreme Court has given a clear guideline: no child should be admitted into the school unless the child attains an age of 3 years. That was categorically mentioned. Then this has become a rule. Still, like some of the pre-primary school, those who were standalone school, those who were not having any classes beyond upper KG or PP2,
So they still were having, the concept of playgroup. Child who is not getting admitted into nursery, LKG or UKG, they will be getting admission into playgroup, then नर्सरी, देन एलकेजी एंड देन यूकेजी। फिर वहां यही बात आ गई कि भाई 3 साल का बच्चा अगर नर्सरी में आ रहा है तो प्ले ग्रुप में किसको ले रहे हो आप, 2 साल के बच्चे को, जो कि सही नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो फिर एक डिबेट वाली स्थिति आ गई कि भाई बच्चे का एडमिशन कब होना है, कैसे होना है। अभी ये सब चल ही रहा था, इस बीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात आ गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बड़ा मेजर चेंज आ गया, जिसमें यह कहा गया कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, that is compulsory and that will be considered as a part of formal education system। तो पहले जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम 10+2 हुआ करता था, जिसमें 12 साल की एजुकेशन होती थी स्कूल की, उसको एनईपी 2020 ने कहा दिस विल बी ऑफ 15 ईयर्स नाउ। तो जब 15 ईयर्स की बात आई तो नर्सरी भी मैंडेटरी हो गया, PP1 भी मैंडेटरी हो गया, PP2 भी मैंडेटरी हो गया, उसके बाद क्लास 1। अब अगर हम इसको लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करें तो क्लास 1 में जब गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि क्लास 1 में बच्चे की एज होनी चाहिए 6 ईयर्स। करेक्ट। Similarly, if you go back in PP2, it should be 5, in PP1, it should be 4, and in nursery, it should be 3, which exactly matches with what Supreme Court also has ordered, right? That means putting everything in one basket, if you look at it, the common advice which comes from the Supreme Court and also from Government of India after the introduction of NEP 2020, that the age of the child should be minimum 3 years when the child is getting admitted into nursery. And play group concept is nowhere existing. It is just, I would say, an additional things। उसको आप क्रैश बोल के बुला लीजिए या आप कुछ भी कहें उसको, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बच्चे जाके अगर थोड़ा समय वहां खेल के या कोई एक्टिविटी करके आते हैं, बट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग। अब सवाल ये आता है कि जब प्री प्राइमरी को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ले लिया गया है, एनईपी ने भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में बाल वाटिका इंट्रोड्यूस कर दी, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होने लगा। तो 3 इयर्स में अगर बच्चे ने नर्सरी में आना है तो कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए? मेरा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन था। बच्चों के डेट ऑफ बर्थ का तो बड़ा इशू हो जाता है कि एक दिन भी इधर उधर हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसमें भी बहुत सिंपल सा लॉजिक था। आई मीन, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर लें या किसी भी कॉम्पिटिशन्स की बात कर लें या नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कर लें, एनीथिंग विच इज मोर देन 0.5 इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट राउंडेड ऑफ नंबर, राइट? एनीथिंग विच इज लेस देन or equal to 0.5 is considered to be the previous rounded off number, right? तो अगर पूरे देश में सेशन स्टार्ट करने की जो कॉमन डेट है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट टॉक्स अबाउट कंट्री एज अ होल, नॉट अ स्टेट स्पेसिफिक, बिकॉज हर स्टेट में एकेडमिक सेशन कुछ स्टेट्स में अलग अलग समय पे शुरू होता है। कुछ विंटर बाउंड होते हैं, कुछ समर बाउंड होते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यूजुअली दे स्टार्ट देयर सेशन इन द मंथ ऑफ जून। कुछ स्टेट्स होते हैं जहां अप्रैल में, बट अप्रैल इज समथिंग विच इज कॉमन, एंड 1st of April is considered as the cutoff date. Now, if 1st of April is the cutoff date, a child who is at an age of 3 years on 1st of April will be considered to be an eligible candidate for nursery class. Fine. Now, सारे बच्चे तो 1st April को 3 साल के नहीं होंगे, कुछ बच्चे 2 दिन पहले होंगे, कुछ 2 दिन बाद होंगे, या कुछ 15 दिन पहले होंगे, कुछ 1 महीने बाद होंगे। ऐसे में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, राउंडिंग ऑफ सिस्टम जो होता है, अ चाइल्ड हु इज ओवर एंड अबव 2.5 years of age as on 1st of April will be considered as 3-year-old, or a child who is less than 3.5-year-old will also be considered as 3-year-old child and will be counted as an eligible candidate for nursery class. Okay. Fine. So that's a calculation. Now here, when I say more than 2.5 means 1st of October से लेके 31st of March के बीच में भी जो बच्चे पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, वो लोग 2.5 से ज्यादा की एज में आ जाएंगे एज ऑन 1st of April।
और वैसे ही 30 सितंबर से पहले जिन बच्चों का बर्थ हुआ है वो भी 3 इयर्स की एज में आ जाते हैं एज ऑन 1 अप्रैल। अब यहाँ 30 सितंबर का भी एक कैलकुलेशन है, देखिए। 30 सितंबर, क्योंकि अभी हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि यूडाइस में हर स्कूल को अपने यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों का डेटा एंटर करना होता है। द डेटा गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट, इट गोज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, because UDICE is a code allotted at district level. It goes to the district, district to state, and state to central government. सर दिस उस इज कॉमन डेटा फॉर ऑल कलेक्शन द के लिए भी, बोर्ड्स? ये हर बोर्ड में ऐसा होता है? yes, yes, ओके। any board you talk about, if a child is studying in any school, if a school is recognized by state board or CBSE or ICSE, even IGCSE and IB also, the school is supposed to update the local district education office saying that in my school I have these many children studying in these classes, these are their names, these are their date of birth and all the basic details. तो 30 सितंबर एक ऐसी डेट है जिस डेट पे जो यूडाइस का डेटा है वो कंपाइल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होता है बाय इंडिविजुअल स्टेट। दैट मीन्स, तो जो भी एडमिशन की पॉलिसीज के साथ हम इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं, दैट 30 सितंबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर। So the summary of everything here is, as on 1st of April, child who is more than 2.5 year age or child who is less than 3.5 year of age is considered to be an eligible candidate for grade nursery, right? Similarly, if you add 3 years to it, grade 1, which exactly matches with Right to Education Act policy, right? Similarly, and over and above 6 years, if you add 10 years, it goes to 16 years, which exactly matches with the board exam policies, करेक्ट। right? So, everything is interconnected. The only confusion where parents are having, where the school पॉलिसी मेकर्स आर हैविंग इज, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की एज 3 साल से ज्यादा हो गई और पेरेंट ने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजा, कंफ्यूजन में या किसी करेक्ट। तरीके की। यहाँ पर स्कूल और पेरेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे को थोड़ा सा ब्रिज कोर्स कराया जाए या जो भी उसका बैकअप अरेंजमेंट है, सो दैट बच्चे का 1 साल खराब ना हो, उसको एलकेजी में आगे ले लिया जाए। बिकॉज दीज प्री प्राइमरी क्लासेस, जैसे हमने बात करी कि 10+2 का सिस्टम अभी जो 15 ईयर्स में आ गया, जिसमें 5+3+3+4 ईयर के ब्लॉक बने हैं, जिसमें पहला जो 5 साल है जिसको फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोलते हैं, so they are basically counted as an year where the foundation of literacy and numeracy is given to the children. I mean, nothing about concepts. No concept is given in these classes. So if by any reason, if a child misses out nursery class, there is a provision of bridge course and child can be taken into the LKG classes, but the same cannot be done in class 1 or 2. I mean, it can happen only at nursery or LKG level. This is my opinion. So this is how it goes. Schools sometimes, they are in the state of confusion because parents are coming saying हमारे बच्चे ने तो उस स्कूल में क्लास 1 नहीं एलकेजी पढ़ लिया है, ये उस स्कूल का टीसी है, अब आपको तो यूकेजी में एडमिशन देना ही होगा। So अब in this situation, school will have to see and understand that just for the sake of admission they should not deviate from the policies and the guidelines given by state government, central government, and NEP 2020. So and during the introduction I missed out one thing, like this year I have started my own school, and the question which you have raised is actually faced by us also in my new school this year. We have got quite a good number of admissions coming into nursery class, LKG, UKG, and grade 1. And couple of parents had this issue because children were studying into those standalone pre-primary schools where age was not counted as an important criteria. It was on the wish of the parent. Parent said बच्चों को LKG में एडमिशन दे दीजिए, स्कूल ने दे दिया। पेरेंट सेड यूकेजी में दे दीजिए, पेरेंट स्कूल ने दे दिया। ये प्रॉब्लम आती है उन स्कूलों में जब ये बच्चे निकल के किसी फॉर्मल स्कूल में आते जहाँ इन्होंने आगे 12th तक पढ़ाई करनी है।
अब ये वो स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ या स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज या सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले स्कूल रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ स्कूल कोशिश करता है पेरेंट्स मान जाए, पेरेंट्स कोशिश करते हैं स्कूल मान जाए। तो ऐसे में लोग अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने ये भी पाया है कि कई बार पेरेंट ये कहते हैं ठीक है मैं अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवा के ले आता हूँ। आई मीन that is again which is not correct and legal, but you can't help it, because instead of understanding the policies and guidelines, they try to figure out what is the shortcut. So that is not correct, I believe, because you know ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है इसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजन है कि बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो क्लास के हिसाब से होना जरूरी है। कई पेरेंट ऐसे कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो इफ इट इज आफ्टर 1 अक्टूबर उसको एक क्लास पीछे पढ़ना पड़ रहा है, अगर वो 30 सितंबर के पहले हुआ रहता तो उसको एक क्लास आगे मिल जाती। ऐसे में उनको ये भी समझना चाहिए कि इसके साथ एक बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अगर बच्चा मान लीजिए अक्टूबर में उसका बर्थ हुआ है तो वो अपनी क्लास में उम्र के हिसाब से सबसे बड़ा होगा। बड़ा होगा। है क्या ना, सबसे बड़ा होगा अगर उसका बर्थ अक्टूबर में हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और अगर सितंबर में हुआ है तो वो अपनी क्लास में उम्र के हिसाब से सबसे छोटा होगा। छोटा हो जाएगा। लाइक आई हैव 2 kids, माय एल्डर सन हु वाज बोर्न ऑन 12th of September, वो उम्र के हिसाब से अपनी क्लास में सबसे छोटा था। एंड माय यंगर सन वाज बोर्न ऑन जनवरी, तो वो उम्र के हिसाब से अपनी क्लास में बड़े बच्चों में काउंट होता था। तो उसका एडवांटेज हमेशा मिलता है कि देखिए उस उम्र में 8 महीने का 10 महीने का गैप भी बड़ा गैप होता है। बिकॉज 8 से 10 महीने में कितनी चीजें बदल जाती है छोटे से बच्चे के लिए। बड़े बच्चों के लिए तो आप बोलते हैं कि चीजें धीरे धीरे बदल रही है, बट छोटे बच्चों के लिए 8 से 10 महीने में बहुत सारी चीजें बदलती है। तो ऐसे में जो ये गाइडलाइंस बनी है वो बहुत रिसर्च करके बहुत एनालिसिस करके बनी है, तो इसको सबको हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके ओके। तो ये जो आप बोल रहे हैं यूडाइस वाला 30 सितंबर के बाद, विच मीन्स जब बच्चा 9th में जाएगा, स्पेशली ये बोर्ड्स में इफेक्ट पड़ेगा, करेक्ट? बिकॉज बोर्ड अभी चूंकि ये इसको अभी हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, तो इसके ऊपर जो चेक्स आएंगे वो ग्रेजुअली ये वाला जो बैच है या आप कह लो करंट बैच या लास्ट ईयर का बैच या अपकमिंग बैच, इन बैचेस के ऊपर वो चेक पॉइंट लगेंगे कि बच्चे की एज जो है एज ऑन 1 अप्रैल एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन उसकी उम्र 15.5 से 16.5 के बीच में है कि नहीं। 16 से 16.5 से ज्यादा भी हो सकती है, कई बार ऐसे होते हैं बच्चे कुछ क्लासेस रिपीट कर लेते हैं, बट 15.5 से कम नहीं होनी चाहिए करेक्ट करेक्ट। एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द बोर्ड क्लास। ऑल्सो इससे ये भी इफेक्ट होता है कि हायर क्लास में छोटे बच्चों का तो अंडरस्टूड कि अ डे अ सेकेंड ऑल्सो मैटर्स फॉर देयर डेवलपमेंट, बट 15 साल का बच्चा या फिर 14 साल का बच्चा जो 10th जा रहा है, उन बच्चों को लर्निंग में भी प्रॉब्लम जाएगा, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट उस समय भी। इट्स वेरी नेचुरल एंड ऑब्वियस। भाई आप देखिए कि ग्रोथ का एक प्रोसेस होता है, एक पेस होता है। अगर अगर हम फिजिकल और मेंटल, कुछ एक्सेप्शनल बच्चे रहते हैं, आपने पाया होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट 10th का एग्जाम दे रहे हैं 4 साल के बाद। आई मीन दोज आर गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, सो दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, उनको हम काउंट नहीं करते बिकॉज वी हैव सीन चिल्ड्रन दोज हु हैव डन पीएचडी एट द एज ऑफ 16 years or 18 years also. But otherwise, if you talk about the conceptual understanding, हमारे देश में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी है जो नेशनल लेवल पे काम करता है। इसके अलावा एससीईआरटी भी है जो स्टेट लेवल पे काम करती है। ठीक है, इनका काम क्या है? बेसिकली दे कीप ऑन डूइंग रिसर्च बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन मार्केट रिक्वायरमेंट, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा कितना कंटेंट हमको बच्चों को देना है किस क्लास में, ये वो डिसाइड करते हैं। तभी तो आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जब मैथ्स में कैलकुलस पढ़ा था, आई वाज इन ग्रेजुएशन, वेरस बच्चे कैलकुलस जो पढ़ रहे हैं अभी 11th और 12th में पढ़ रहे हैं। तो ये रिसर्च के साथ तय होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके ग्रास्पिंग एबिलिटी क्या है। इट इज नॉट जस्ट विथ वन चाइल्ड, इट इज टेकन ऑन एन एवरेज
कि बच्चों की जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है वो क्या है, उसके हिसाब से कंटेंट दिया जाता है। तो जब कंटेंट आपका बना है मान लीजिए 15.5 ईयर से ज्यादा एज के बच्चे के लिए, और वहां पर अगर 13.5 और 14 ईयर का बच्चा आएगा तो क्लैशेस तो होंगे। और वो क्लैशेस अल्टीमेटली लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रिजल्ट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो रिजल्ट से बच्चे के माइंडसेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल आप देखोगे कि फिर उसके करियर पे फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन चीज़ों को समझें और इन पॉलिसीज को अडॉप्ट करें एंड try to follow these guidelines given by the government, which has been released after a huge amount of research and analysis by great educationists, those who are behind this. ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच। ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है, इट वाज रिक्वायर्ड एंड आई होप अभी इसके बाद पेरेंट्स को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एंड दे विल एबल टू टेक द फाइनल डिसीजन कि कौन से क्लास में हम अब इनरोल करें, बिकॉज ये कई स्टेट्स में आज भी कंफ्यूजन था, सो इट हैज गॉट रेक्टिफाइड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग अवेलेबल ऑन शॉर्ट नोटिस। थैंक यू My pleasure. एंड God विश bless यू। you, Priyanka. थैंक। मेरे पास कोई अच्छा बैकड्रॉप नहीं है। क्या नहीं है? मैंने कहा बैकड्रॉप कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये कह रहा था। अच्छा, दैट्स ओके, आप बोलोगे उसी में बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो।